Hello students, come to the VVPS online classes. Students, in my previous video, I have explained you the story of Dear Mrs. Naidu, part 1. Today I am going to explain the second part of the story. It will start from page number 81. This is your page number 81. Okay, now come to this part of the story. You know how adults are, Mrs. Naidu. They don't like questions. As the girl Sarojini is writing a letter to Mrs. Naidu, so she is saying that adults are not used to listen questions. Adults जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन करना पसंद नहीं होता. Even though it was only the first week of school, Miss gave us an assignment. And it was her first day of the school, and her Miss Annie, her class teacher, gave them assignment. Okay, now the girl Sarojini was in class 6th. It is time for us to be serious. और उनकी टीचर ने ये बोला कि अब आप लोग क्लास 6 में पहुंच गए हैं और अब आप लोग को सीरियस हो जाना चाहिए. एवरी टीचर सेज दिस एवरी ईयर. हर साल हर टीचर ये बात बोलते, बट नन ऑफ देम ever gave us assignment during the first week of school. So Annie Miss might mean it. और लेकिन हर टीचर फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल कोई भी असाइनमेंट नहीं देता, लेकिन मिस एनी ने असाइनमेंट दिया और उन्होंने इस बात को स्ट्रेस भी किया कि आपको क्लास 6 में यू शुड बी सीरियस. द असाइनमेंट इज टू राइट लेटर्स टू समवन वी वुड like to get to know better. She said that we could pick anyone as long as we explain why. और मिस एनी ने ये भी बोला है कि उस असाइनमेंट में आप लोग को लेटर लिखना है जिसे भी आप अच्छे से जानना चाहते हैं, और आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं अपने लेटर में एड्रेस करने के लिए, और आपको इसका रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. एज यू हैव प्रोबेबली कंक्लूडेड मिसेस नायडू, आई पिक्ड यू. और द गर्ल सरोजनी इज सेइंग दैट I picked Mrs. Naidu for the letter. This is the first time I have written the word concluded. It's an English word that means figured out based on clues and evidence. First time the word concluded is used by the girl, and according to her, the meaning of the concluded means figured out based on clues and evidence. Evidence और clues के हिसाब से किसी को figure out करना. I learned it by reading detective stories. और the girl Sarojini is saying that उसने जो है ये word detective stories से find out किया और पढ़ा है. Even though our English miss says they are useless rags. यहाँ तक लेकिन हमारी जो इंग्लिश टीचर हैं वो कहती हैं ये वर्ड जो है यूजलेस है. I conclude that she is wrong, but according to me she is wrong, the girl is saying. I understand if you find the confusing, Mrs. Naidu. After all, you and I don't have much in common. For one thing, I am alive and you are. Well, you are not. And the girl Sarojini is saying that कि I understand if you find this confusing, कि आपको ये बात थोड़ी सी confusing लगेगी कि मैं एक चीज़ जो हम दोनों में कॉमन नहीं है वो ये है कि मैं जीवित हूँ और आप अलाइव नहीं हैं. आई एम सॉरी इफ़ दैट वॉज रूड, बट आई एम नेवर रिटर्न टू अ हिस्टोरिकल पर्सन बिफोर, सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से इट. एंड शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर टू बी बीइंग नॉट पोलाइट, बीइंग रूड. Here's another difference between us. When you were 12, which is how old I am now, means the girl is of 12 years. She is explaining that. Which is how old I am now. You wrote a poem that was thousands of lines long after it, and it was in English. और मिसेस नायडू आपने जो है एक पोएम लिखी है वो भी इंग्लिश में 1000 लाइन्स की. I don't think I could write that many lines in any language, definitely not in English. और ये अनकॉमन है कि आपकी तरह मैं 1000 लाइन्स की पोएम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकती, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं. ऑल्सो व्हेन यू वर 12 यू टॉप द मद्रास यूनिवर्सिटी मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स, और आपने
12 ईयर्स की एज में मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किए थे मद्रास से. आई टॉप our class 5 exams, but I don't think I could top a college exam even if I studied really hard. Even though I am working hard or I am studying hard, but मैं फिर भी अब इस एग्ज़ाम्स को आपकी तरह इतनी ब्रिलियंट नहीं हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर सकूँ. यू फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड वन. और आपने भारत को स्वतंत्र कराने की, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया था और आपने फ्रीडम आप वन भी की थी, मीन्स आप विजयी भी हुई थी. आई हैव नेवर फॉट फॉर एनीथिंग. और मैंने आज तक किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ी. इफ़ आई डिड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वुड विन. और अगर मैं कोई लड़ाई लड़ती भी तो भी मैं नहीं जीत पाती, ये मुझे पता है. स्पेशली इफ़ आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स who have lots of spies and detectives and things that I don't think we have in India. Especially Britishers से तो बिल्कुल भी नहीं. You lived in a huge house with a lot of rooms and maids to do your household. Now, the girl Sarojini is saying about the differences between herself and Mrs. Naidu. कि उसने एक्सप्लेन किया कि आप एक बड़े घर में रहती हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर भी हैं. माई हाउस हैज़ ओनली वन रूम एंड अम्मा इज़ मेड हु डज अदर पीपल्स हाउस वर्क. और मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ और मेरी मम्मी खुद ही मेड हैं और अपने घर के काम खुद करती हैं. यू हैड अ लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देन यू हैड अ लॉट ऑफ किड्स. और आपके बहुत सारे भाई बहन होंगे और हैं, और आपके बच्चे भी बहुत सारे हैं, कई बच्चे हैं. मीन्स आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डिफरेंस इज़ दैट कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं. आई डोंट हैव किड्स ईदर बट यू प्रोबेबली कंक्लूडेड दैट ऑलरेडी सिंस आई एम ओनली 12. क्योंकि मैं सिर्फ अभी 12 ईयर्स की ही हूँ. ये हम दोनों में डिफरेंस है. हेयर इज़ वाई आई डिसाइडेड टू राइट टू यू. आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट योर लाइफ. और मैंने आपको आपके बारे में ही लिखना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आपके विषय में, आपके बारे में मैंने बुक पढ़ी. मैं आप पर लिखी हुई आपकी बुक पढ़ रही थी. विमला मैडम गेव इट टू मी और शी गेव इट टू अम्मा टू गिव इट टू मी. और वो बुक हमें विमला मैडम के थ्रू मिली थी. आई हैवंट रीड ऑल ऑफ इट येट. इट्स इन इंग्लिश बट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश दैन द काइंड दे यूज इन डिटेक्टिव स्टोरीज. मीन्स जो आपकी बुक है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में है, और जबकि मेरी आदत है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने की जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं होती. सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम. इसलिए मुझे उस बुक को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. सो फार आई हैव ओनली रीड द पार्ट अबाउट योर चाइल्डहुड. अभी तक मैंने सिर्फ आपके बचपन वाला पार्ट ही उस बुक से कवर किया है, उसमें पढ़ा है. बट दैट पार्ट मेक्स मी लाइक यू. मगर उस पार्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ हम लोगों में सिमिलैरिटी है. व्हेन यू वर माई एज और इवन यंगर मिसेस नायडू, इट सीम्स लाइक यू स्टूड अप टू पेरेंट्स and teachers and all the adults who don't understand anything at all but act like they do. और जब आप मेरी उम्र की थी या मुझसे थोड़ी छोटी थी तो आप अपने पेरेंट्स और या किसी भी एडल्ट्स के अपोजिट में खड़ी हो जाती थी जब आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती थी. फॉर एग्जाम्पल द बुक सेज दैट, मतलब आफ्टर रीडिंग द बुक द गर्ल सरोजनी अंडरस्टूड दैट वंस her parents of Sarojini Naidu wanted her to speak English instead of Bengali, but according to the story सरोजनी ने उनकी बात नहीं मानी थी और अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था होल डे. और चूँकि वो उनकी उस बात से सहमत नहीं थी और यहाँ तक कि वो लंच करने के लिए भी नीचे नहीं आई थी मिसेस नायडू. I don't know if this is true or just a story, but if I had a house with more than one room, there are plenty of times I would have locked myself behind a closed door. और बता रही हैं कि मैं भी आप ही की तरह इसी नेचर की हूँ कि अगर मुझे भी जिसकी बात समझ में नहीं आती तो शायद आपकी तरह मेरे पास भी कई रूम्स होते तो मैं भी अपने आप को लॉक कर लेती. बट मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है. आई गेस दैट्स वाई यू सीम लाइक समवन हु अंडरस्टूड किड्स लाइक मी. इसलिए मुझे लगा कि आप भी मेरे जैसे
किड की बात को समझेंगी, क्योंकि मेरा आपका नेचर कुछ मामलों में मिलता है. लाइक मे बी you wouldn't mind if I asked you questions and read detective stories and stayed at school late, so I didn't have to go to विमला मैडम्स हाउस. और अगर मुझे भी ये लगता है कि आप इस बात मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ और मैं डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ सकती हूँ, और जिसके कारण मैं स्कूल से लेट आ सकती हूँ और मुझे विमला मैम के घर नहीं जाना पड़ेगा काम के लिए. एंड नाउ आई हैव completed my first assignment, which is to introduce myself to the person that I am writing to. और मुझे लग रहा है कि मेरा असाइनमेंट अब कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये था कि मुझे इंट्रोड्यूस करना था अपने आप को ऐसे पर्सन से जिसको मैं लेटर लिख रही हूँ. टू बी completely honest, my brain and my heart feel exactly the same as when I started. और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा हार्ट और ब्रेन स्टार्टिंग में जैसा फील कर रहा था, वैसा ही एग्जैक्टली मैंने अपने वर्क को ऑनेस्टली कंप्लीट किया है. एट द एंड द गर्ल सरोजनी इज सेइंग ऑल द बेस्ट एंड हर नेम सरोजनी. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो.